Assalamu alaikum. Today is our topic is integration by parts. So integration by parts कब इस्तेमाल होता है? जब भी आपके पास दो फंक्शन हो और उनका प्रोडक्ट हो और वो एक दूसरे के डेरिवेटिव ना हो, तो we will use integration by parts. So what is the formula of integration by parts? U integration of v derivative with respect to x minus integration, then apply bracket derivative of u into integration again, integration of v dx. Then bracket close derivative of this integration. Okay. सो इसमें हमारे पास ये होगा कि दो फंक्शंस हों अगर और उनका प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तकरीबन इंटीग्रेशन के सवाल जो इस तरह के होंगे उनका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पर u और v का क्या है? यहाँ पर u एज अ फर्स्ट फंक्शन होगा और v जो है एज अ सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, we will treat u as a first function and v as a second function. Okay. अब ये कैसे पता चलेगा कि किसको हम u कंसीडर करें और किसको हम p कंसीडर करें? लेट्स दिस इज अ ट्रिक ILATE। इसके जरिए से हम सेलेक्ट करेंगे कि which function is u and which function is v. So I means I stands for inverse. Okay, L stands for logarithmic function. Logarithmic function. A stands for algebraic function. And T stands for trigonometric function. And E stands for exponential function. So by alphabetically order, we will choose the first function and second function, then third function. कि इसमें से जो पहले alphabetically आ रहा है तो उसको हम first function, then second, इस तरह से हम choose करेंगे. Let's go to examples. So our first example is इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ln x, ओके, dx. अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास x है और एक फंक्शन l है, ln है। तो x क्या है? विच फंक्शन इज ln x? सो दिस बिलोंग्स टू algebraic function and ln x belongs to logarithmic function. According to ILATE condition, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इज ln, means let's say u is equal to ln x and v is equal to x. Okay, so we will apply formula. So u derivative of v dx minus integration bracket derivative of first function into integration of second function, then bracket close derivative. Okay, we will substitute. So as we know, okay, we select u as ln x. So ln x into derivative x dx minus integration of then derivative of ln x and multiplication, then in the place of v we will substitute x dx and bracket close dx. Okay, so ln x as it is आएगा. The derivative integration of x is equal to, as we know, x squared divided by 2 minus integration the derivative of ln x. As we know the derivative, how can we differentiate ln x? So the function or the number with ln x, if we apply derivative, this goes to the denominator with 1 upon x and then again derivative ln d by dx of x. ओके, मतलब इसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में भेज देते हैं 1 अपॉन के साथ, देन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dx आ जाएगा. ओके, सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ln x माइनस, सो ये x से x क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन से, 1/2 एंड आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, डी एक्स बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स डिवाइड हो जाएंगे, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ln x minus 1/2, द डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ x is equal to x square divided by 2 means x square upon 4 plus c. So this is the integral of given question. Okay. Now we are going to next question. Let's say x square into ln x dx. Again, this is algebraic function, this is logarithmic function. So select u is equal to ln x and v is equal to x square. So substitute in formula. So u, according to formula, u derivative of integral of v. So u is ln x integration of x square divided d of x minus, but then integration derivative of u means ln x, then apply integration of v means x square dx, then again dx of this for this integral. Okay, so ln x, the integral of x square is equal to x cube divided by 3 means इसकी एक पावर में ऐड करेंगे, देन उसी को जो भी पावर आई है उसी को डिवाइड में लिख देंगे। ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन, द डेरिवेटिव ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3dx। ओके, सो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट ln x into x cube divided by 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और ये 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। सो एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट ln x, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, सो वो 3 1/9 हो जाएगा, 3 3 is 9, then x cube plus c, this is the integral of given question. Okay, so now next example is integration of ln x। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x नहीं पता हमें, ठीक है, ln x का इंटीग्रल नहीं होता डायरेक्टली, सो वी विल चूज अनदर फंक्शन विद ln x, मगर क्या चूज करें, सो लेट्स से ln x डॉट 1। अच्छा, अब यहाँ पर किसको u सेलेक्ट करें, किसको v सेलेक्ट करें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि हमारे पास क्या होता है कि u इंटीग्रल ऑफ v d by dx minus integral फिर डेरिवेटिव ऑफ u, then integral of v, then ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, अच्छा देखें यहाँ पर जो है ना u क्या है, u जो है वो डेरिवेटिव के साथ है, अगर हम, और v क्या है, इंटीग्रल के अंदर है, अगर हम ln को u चूज कर लें तो हम इस चीज से क्या हो जाएंगे, इस चीज से बरी हो जाएंगे कि उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो, क्योंकि इंटीग्रल अप्लाई हुआ तो दोबारा से वही चीज, वही कंडीशन, वही प्रॉब्लम कि इंटीग्रेशन तो है ही नहीं ln x का, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, चूज करते हैं, लेट्स से ln u इज ln x एंड v इज इक्वल टू 1। सो अप्लाई फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, सो क्या होगा, इक्वल टू u ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर देन डेरिवेटिव ऑफ ln x, सही, फिर डॉट integration of 1 dx into dx। ओके, सो ln x एज इट इज, इसका इंटीग्रल क्या होगा, x आ जाएगा। अच्छा, ये x मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ये अदर्स है और ये एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि ये ln के साथ है ना, माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होगा, 1/x आ जाएगा, फिर दोबारा से उसको डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो x को, तो वो 1 आ जाता है, देन इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, यहाँ से 1x आ जाएगा, देन dx। ओके, so x cancel, so our given answer is ln x dot ln x minus 1 बचा, so यहाँ पर दोबारा से x आ जाएगा प्लस c, so our required answer of this question। okay, so
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे पास लेट्स से एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन आई एल ए टी ई। सो पहले ए आ रहा तो इसका मतलब u इज इक्वल टू एक्स कंसीडर करेंगे, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, और v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इनटू cos x, दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। होल दिस होल इज पार्ट एज सेकंड फंक्शन, सो अप्लाई फॉर्मूला। So according to formula पहले u लिखेंगे, then integration of v sin square x cos x dx minus integration फिर then derivative of u means x, फिर integration of sin square x dot cos x dx, then again dx, okay। सो x, अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें, ये साइन x है और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है cos x। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि हमारे पास अगर इस तरह से हो कि f ऑफ x हो और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, f प्राइम x मौजूद हो और इस पे कोई पावर हो, तो इसका आंसर होता है कि f ऑफ x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, मीन्स साइन का डेरिवेटिव cos x है तो क्या होगा, साइन क्यूब x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब अपॉन 3, सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ओके। सो क्या आएगा हमारे पास, एक्स अपॉन 3 इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स, फिर -1/3 इंटीग्रेशन, अच्छा साइन क्यूब है तो इसका मतलब यहाँ पर हम साइन एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं dx। अच्छा, तो इस हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अगर हमारे पास जो है ऑड पावर होगा साइन के ऊपर, ऑड पावर है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन के साथ, x/3 साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर अगर ऑड पावर हो तो साइन के ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ओके, इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वी विल रिप्लेस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ओके। सो ये हमारे पास एज इट इज आएगा, x³ अपॉन 3 इंटू साइन क्यूब ऑफ x -1/3, -1/3, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx। अच्छा, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर ये साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, x³ अपॉन 3 साइन क्यूब ऑफ x -1/3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, माइनस का कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखें, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, तो हम -7 लिख देंगे, तो -7 लिखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो कॉस का डेरिवेटिव मौजूद है मगर माइनस नहीं है, तो -7 लिख देंगे। सो माइनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा देंगे, cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3। सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ गिवन क्वेश्चन, ओके। यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।